बच्चों, today we have to start it. The topic is management by exceptions. Management by exceptions is a system that recognizes, communicate and indicate a manager when his involvement is required. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यह एक प्रणाली है जो रिकॉग्नाइज कम्युनिकेट एंड इंडिकेट करती है एंड व्हेन हिज इन्वॉल्वमेंट इज रिक्वायर्ड, जहां एक मैनेजर को उसकी भागीदारी की आवश्यकता होती है. सो management by exceptions is recognize, communicate, indicate that the manager his involvement in required. The second is characteristic of management by exceptions. The first is incorporate many law and rules of its own that are practical and reliable. It incorporate many law and rules. इसमें अपने स्वयं के कानून और नियम शामिल हैं. Its own are practical and reliable, जो व्यवहारिक और भरोसेमंद है. The second is its fundamental objective is to simplify the job of managers and make them more efficient. इसका मौलिक उद्देश्य मैनेजर को नौकरियों का सरल बनाना और उन्हें और अधिक कुशल बनाना है. Fundamental objectives to simplify the job of manager and make more efficient और अधिक कुशल बनाना. The third is it is time efficient and mainly focus on saving management time by giving preference to important business activities. It time to efficient and mainly focus. कुशल और मुख्य रूप से सेविंग मैनेजमेंट बाय टाइम. मैनेजमेंट समय को पहचानना. गिवन प्रेफरेंस टू इम्पोर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी. मैनेजमेंट टाइम को सेव करना, कुशल बनाना. मुख्य रूप से यह केंद्रित करता है महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों के लिए. टू इम्पोर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी. द नेक्स्ट टॉपिक इज advantage of MBE, management by exceptions. The first is it saves a lot of time by passing on critical issues on the subordinate and other responsible employees. यह गैर महत्वपूर्ण मुद्दों को पार करके बहुत समय बचाता है सबॉर्डिनेट एंड अदर रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय के प्रति. The second is it involves optimum utilization of talented so as to obtain high work return. It involves optimum utilization उच्च कार्य प्राप्त करने के लिए talent so as obtain high work return. उच्च कार्य प्राप्त करने के लिए प्रतिभा को इष्टतम हाई वर्क ऑप्टिमम हाई वर्क रिटर्न उपयोग शामिल है. The third is it increases the decision making ability of managers so as to obtain effective decision making. It increases the decision making. यह increase decision making को increase करता है. Ability of manager की क्षमताओं को बढ़ाता है बनाने एंड ऑब्टेन इफेक्टिव डिसीजन और वह प्रभावी निर्णय ले सके यह बताता है. द सेकेंड इज डिसएडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस. MBE use
unreliable data and information in most of cases. Uh, MBE uses unreliable data and information. यह MBE ज़्यादातर अधिकांश मामलों में अविश्वसनीय डेटा और जानकारी का उपयोग करता है. The second is required. It requires details reporting analysis system. It's required detailed reporting and analysis system. यह विस्तृत रिपोर्ट एनालिसिस रिपोर्ट एंड विश्लेषण प्रणाली की आवश्यकता है. इसके लिए विस्तृत रिपोर्ट और विश्लेषण प्रणाली की आवश्यकता है. द थर्ड इज इट इन्वॉल्व टिडियस अमाउंट ऑफ पेपर वर्क. इसमें पेपर वर्क की थकाऊ राशि शामिल होती है. इट इन्वॉल्व टिडियस अमाउंट ऑफ पेपर वर्क. द फोर्थ इज इट promotes the concept of recognized organization man. यह ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति की अवधारणा को बढ़ावा देता है. It promotes the concept of organization man. The next topic is training and development. Training is a systematic process of changing the behavior, knowledge, and or motivation of present employee to improve the match between employee characteristic and employee requirement. ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो चेंज करती है बिहेवियर को, नॉलेज को एंड मोटिवेट करती है प्रेजेंट एम्प्लॉय को टू इम्प्रूव मैच बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक एंड एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट. जो इम्प्रूव करती है एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक को और एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट को. सो ट्रेनिंग इज सिस्टमैटिक प्रोसेस जो एम्प्लॉय को उनके बिहेवियर में, उनके नॉलेज में एंड उनकी मोटिवेट करती है प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए और अपनी गलतियों में सुधार करने के लिए उनको प्रेरणा देती है. द सेकेंड इज डेवलपमेंट. Development is a systematic process that enables the manager to develop their ability in order to attain gain. यह एक सिस्टमैटिक प्रोसेस, डेवलपमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. अनेबल द मैनेजर्स डेवलप देयर एबिलिटी, उसकी योग्यताओं के अनुसार, इन ऑर्डर टू गेन ग्रोथ. इन ऑर्डर टू गेन ग्रोथ. डेवलपमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो मैनेजर को उसकी एबिलिटी के बेस पे ऑर्डर टू गेन, उसको गेन करती है, उसको हाई पोजीशन दिलाती है. द सेकेंड इज ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉइंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. ट्रेनिंग इज द एक्ट इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल. ट्रेनिंग एक एक्ट है जो इंक्रीज करती है ज्ञान और कौशल को बढ़ाती है एक नए एम्प्लॉय को एक नई जॉब के प्रति. अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो, ये कहते हैं एक नए कर्मचारी, एक नए एम्प्लॉय एक नई नौकरी के प्रति अपनी नॉलेज एंड स्किल को इंक्रीज करता है. That's called as training. The second is need for a training of employee. First is to improve quality. गुणवत्ता में सुधार करने के लिए. To improve quality, गुणवत्ता में सुधार करने के लिए. Second is to increase productivity. उत्पादकता में बढ़ा करने के लिए. टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट. ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को इम्प्रूव करने के लिए. टू इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी. स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार करने के लिए. पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तित्व विकास के लिए. इम्पॉर्टेंट है
need for the training employment. The next topic is process of training and development. The first is need. Training needs assessment. Training need should be identified to help the employee deal with present as well future challenge of company. Training needs. Training needs should be identified to help employee. ट्रेनिंग मदद करती है एम्प्लॉय की टू हेल्प एम्प्लॉय डील विद प्रेजेंट आज के समय से एज वेल फ्यूचर के समय तक कंपनी की चैलेंजेस ऑफ कंपनी ट्रेनिंग एम्प्लॉय की हेल्प करती है प्रेजेंट टाइम से फ्यूचर टाइम के लिए चैलेंजिंग फॉर द कंपनी के विकास के लिए द सेकेंड टॉपिक इज establishment of training goals. After assessing the need of training, it is necessary to establish the apparent and accessible training goal which can be understood easy by the employee. Establish of the training goals. The training goals. After assessing the needs of training, it is necessary of establish प्रशिक्षण स्पष्ट और मूल्यांकन योग्य स्थापित करती है It necessary to establish the permanent accessible training goal which can be understood easily by employees जिन्हें एम्प्लॉय द्वारा आसानी से समझा जा सके ऐसे ट्रेनिंग गोल्स इस्टेब्लिश करती है द नेक्स्ट टॉपिक इज इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट परिणामों का मूल्यांकन It is done mainly to ensure whether the training process has proved to be useful to the employee as well as to the organization or not. If the assessment is done systematically, it enhances the performance of the employee as well as the organization. Evaluation of result. It is done it is done mainly to ensure whether the training process has proved to be useful of the employee. क्या यह एम्प्लॉय के लिए उपयोगी साबित हुआ है या नहीं If assessment is done systematically, it enhances the performance of the employee as well as the organization. यह कर्मचारियों के लिए यह एम्प्लॉय के लिए यह एम्प्लॉय के लिए प्रदर्शन को बढ़ावा देना है ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें